Okay, so this is lecture number 10, and first we are going to take care of the homework which was given to me on the basis of vertical circle. A quick rapid fire round, books band rakho beta, memory recall. If the particle is performing vertical circle, did we say that this is the line with respect to which angle is height is measured, and this is the line with respect to which angle is measured? We took 4 positions, 1, 2, 3 and 4. 1 is the lowest position, let us call this as A. 2 is the highest position, let us call this as B. This is the horizontal position and this is any position, right? I am sure I don't need to write about height and angle. Height and angle, because height here is 0, height here is 2r, height here is r, and height here is h. Where what is h in general? L times h is L times 1 minus cos theta. Yes or no? So first we have to write the generalized formula. h का फॉर्मूला था L times 1 minus cos theta. इसका मतलब आपको स्ट्रेट अवे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया. पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, which is mg times L times 1 minus cos theta, right? बाद में एक फॉर्मूला था वेलोसिटी का, was it under root u square minus 2gl times 1 minus cos theta, and then you can use kinetic energy is equal to half mv square. फिर एक फॉर्मूला था टेंशन का, जनरल फॉर्मूला, was it mv square upon r plus mg cos theta, and the second formula was m upon L times bracket u square minus gl times 2 minus v cos theta. I told you that if you master this formula, then let them ask the problem anywhere. In fact, I am very sure कि जो मैंने आपको 15-20 जो भी questions दिए थे, 10-12 में पक्का आ गया होगा सब. Yes or no? Still we will discuss, right? And then I will start with some new concepts. So one by one, what is the minimum requirement of velocity at the bottommost position so that the particle can complete this circle? Was it more than or equal to root of 5 rg? मतलब ज्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए. अच्छा, ज्यादा में भी एक लिमिट है. If the steel breaks, then you cannot cross that value. Suppose root 6 Lg is allowed, root 7 Lg is allowed, root 8 Lg is allowed. But what if root 9 Lg पे वो string break हो रहा है? Then it is not allowed. Break नहीं हो रहा है, then it is allowed. Because the breaking tension will differ from string to string, right? This is made up of cotton. It may be made up of nylon. It may be made up of quartz fiber, it may be phosphor bronze fiber, it may be copper wire, it may be aluminum wire. So the breaking tension differs from string to string. What is the minimum requirement of velocity here? Should it be root of 3 rg से ज़्यादा? Should it be root of 1 rg से ज़्यादा? Yes or no? And therefore this is the general condition. Likewise, what is the condition for tension here? It should be minimum 6 mg. It should be minimum 0. It should be minimum 3 mg. Right? अगर उन्होंने mg के टर्म्स में पूछा तो, अगर mg के टर्म्स में नहीं पूछा, then we say that tension at the highest point is lowest, and it is mv square upon r minus mg. Tension at the lowest point is highest, and it is mv square upon r plus mg. Tension at the horizontal point is only mv square upon r. That means mg does not play a role, because here theta is 90, and because theta is 90, cos of 90 is 0, and therefore the answer is only mv square upon r. That means when you think about this point, यहाँ पे tension contribute नहीं करता है, and when you think about this point, यहाँ पे mg contribute नहीं करता है. Over here tension just becomes 0. And over here mg becomes 0 because of the partnership with cos theta, because cos theta becomes cos 90. ये बेटा अपना last lecture का memory recall था, last lecture का. Now first we will discuss each and every doubt of the homework which was being given to you. After that, most of the points in the synopsis I will finish. There are 12 pages. So by the end of the lecture, I think we will be left only with 1 page. So first, are you on assignment number 4? Are you on assignment number 4? जो क्वेश्चन बेटा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे नहीं लग रहा है मुझे उसमें आपका और मेरा टाइम वेस्ट करना चाहिए.
Question number 1 of assignment number 4. Assignment number 4, question number 1. एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है. टेंशन इज mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा. Am I right? मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर r प्लस g cos थीटा. मतलब मैंने m कॉमन भी लिया. Yes or no? If I use this formula, what is the only unknown? Omega. I think so. Answer is coming as del E. Answer is coming as del E. आया बेटा सबको? Question number 2. Question number 2. A 2 kilogram stone is. अभी बेटा इसमें एक में से मैं 4 क्वेश्चंस बना रहा हूँ. इसमें एक में से मैं 4 क्वेश्चन बना रहा हूँ. आपका आंसर ए आ गया होगा. आपका आंसर ए आ गया होगा. Question number 2. T is equal to m v square upon r plus g cos theta. Now check please. We have to decide where is the particle. We have to decide where is the particle. ध्यान से सुनो खाली, क्योंकि मैं एक में से 4 क्वेश्चंस बना रहा हूँ. Tension is 52 Newton given. Mass of the body 2 kilogram given. Speed of the body 4. So this is 4 square. Length of the string is radius of the circle which is 1. G is 10. Theta मुझे मालूम नहीं, right? So 52 is equal to 2 times 16 plus 10 cos theta. Yes or no? That means 26 is equal to 16 plus 10 cos theta. इसका मतलब 10 is equal to 10 cos theta. इसका मतलब cos of theta is 1 and therefore theta is 0. That means the particle is at the bottom of the circle. अब ध्यान से सुनो बेटा कि वो लोग एक में से 4 क्वेश्चन कैसे बनाते हैं. If 56 न्यूटन is replaced by 36 न्यूटन, ये सपोज सॉरी 52 है ना, उसके बदले सपोज ये 32 है. 52 के बदले 32, तो 32 अपॉन 2 is 16, तो ये 16 हो गया. 16 is 16 plus 10 cos theta. Cos theta will be 0, theta will be 90. 90 मतलब आपका पार्टिकल या तो इधर है या तो इधर है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन या तो हाफ वे डाउन. कौन सा ऑप्शन? तो बेटा आपका आंसर सी आएगा. मतलब मैंने कुछ नहीं किया, सेम क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर को सिलेक्ट करने को बोला, मैंने 52 के बदले 32 कर दिया. जो स्टूडेंट रट्टा मार के गया मर गया. अगर मैंने 52 के बदले 32 भी नहीं किया, 12 किया, 12, इसका मतलब बेटा ये स्टेप होगा 12 अपॉन 2, 6. 6 is equal to 16 plus 10 cos theta. 6 minus 16 is minus 10. इसका मतलब थीटा 180 डिग्री आएगा. एक ऑप्शन हाईएस्ट पॉइंट होगा. कौन सा ऑप्शन है? बॉम्बे. एज पर द क्वेश्चन मेरा आंसर ये आ रहा है शायद, है ना. अभी सोचो, अगर मैंने 52 को कैंसिल किया, 32 भी नहीं लिया, 12 भी नहीं लिया, बट आई एम टेकिंग टेंशन एज सम नंबर बिटवीन 12 एंड 52, राइट. मैंने लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला है, मतलब मैं 12 भी नहीं लूंगा, 52 भी नहीं लूंगा, 32 भी नहीं लूंगा, तो फिर मेरा आंसर आएगा एनी पोजीशन. माय आंसर विल बी डेल. अब आपने सॉल्व किया, आपका आंसर ये तो आ ही गया हो. बी सी डी कब आएगा वो लिखो. बी के लिए लिखो ब्रैकेट में if 52 is replaced by 12. बी के लिए लिखो if 52 is replaced by 12. सी के लिए लिखो if 52 is replaced by 32. If 52 is replaced by 32. डी के लिए लिखो if tension is between 12 and 52. If tension is between 12 and 52, but not 12, not 32, not 52. If tension is between 12 and 52, ध्यान से देखो, मैंने लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, सिर्फ लेस देन लिखा है. मतलब 12 is not included, 52 is not included, and 32 also should not be included. तो ये क्वेश्चन आपको आ गया था, लेकिन मुझे इसमें एक में से 4 क्वेश्चंस बनाना था. So I solved it. Question number 3. Question number 3. I'm sure beta easy. Knowledge based. Right? Question number 3. The answer is सीधा सीधा root of 5 L. That means your answer should be L. Question number 4.
Question number 4. What is the difference between kinetic energy at the top and kinetic energy at the bottom? Kinetic energy at the bottom. Kinetic energy at the bottom is pi by 2 mRg, and kinetic energy at the top is half mRg. इसका मतलब difference of kinetic energy is 2 mRg. बराबर? That means question number 4 your answer should be C. अभी बेटा थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिखो सॉल्व 10 एंड सॉल्व 18. 18 तो शायद रिपीट ही है. 10 में ऑप्शंस के बदले नंबर्स दिए हुए हैं. 10 में ऑप्शंस के बदले नंबर दिए हुए, मास का वैल्यू दिया, रेडियस का वैल्यू दिया. योर आंसर शुड बी 2 mg. इसका मतलब 10th का आपका आंसर आ रहा है बॉम्बे. 10th का आपका आंसर आ रहा है बॉम्बे और 18th का आपका आंसर आ रहा है सी. बराबर? तो 4th में लिखो सॉल्व 10 एंड 18. 10 और 18 पे जाके लिखो सेम एज 4. 10 और 18 पे जाके लिखो सेम एज 4. I hope I'm not fast. Are we on 5th question? Are we on 5th question? The minimum speed at the lowest point of the vertical circle is r. Apply common sense. ये पूरे चैप्टर में v का फॉर्मूला हमेशा कैसा होता है? Is it under root rg into something which is dimensionless? Do you agree with me? It is always under root rg into something which is dimensionless. Do you agree with me? इसका मतलब for sure v depends on root of r. For sure. इसका मतलब I think radius 1/4 किया है. Am I right? Yes. So can I say new speed upon old speed is new radius upon old radius का square root. Right? That means my answer should be half. Right? Option please. Option. Bombay. Right? ये बेटा आया सबको. इनको कॉपी करना प्लीज लेट मी. सर वेट प्लीज. खाली उतना बोल दो. Then I will wait and then I will go to the next question. 5th क्वेश्चन आया सबको? कॉपी करना है किसी को? Yes sir, no sir? Okay, I think 6th is on the same lines. Let me check. A curved road of radius 30 meter is banked at a correct angle. If the speed of the car is to be doubled, then the radius of the curvature should be. Easy. Question number 6. Can I argue V depends on R under root? Therefore R depends on V square. So since speed is to be doubled, that means radius should be 4 times. Radius should be 4 times. Initial radius कितना था? 30. That means your answer should be 120. Your answer should be 120. Option please. Sorry. Delhi. Question number 7. Question number 7. A particle of mass m is rotating by means of a spring in vertical circle. Question में हमेशा ये पहले देखने का कि question vertical circle का है कि horizontal circle. अगर horizontal circle का है तो easy है. But vertical circle में velocity changes everywhere, tension changes everywhere, kinetic energy changes everywhere, potential energy changes everywhere, angle changes everywhere, height changes everywhere. Only one thing remains constant. Total energy 5 by 2 mR. So is your answer 3 mg. यहाँ पे बेटा टेंशन कितना है 6 mg और यहाँ पे टेंशन कितना होता है 3 mg. बट वेरी इंपॉर्टेंट इज ध्यान से सुनो. अगर उन्होंने बोला कि इधर टेंशन 7 mg है तो फिर इधर 4 mg आएगा. क्यों? ये दोनों का डिफरेंस हमेशा 6 mg होता है. तो बॉटम पे जो आंसर दिया सबसे पहले टॉप पे आंसर निकालेगा. अगर ये मैंने 8 mg दिया मतलब ये 2 mg. 8 और 2 का एवरेज 5 mg होना चाहिए. अगर ये मैंने 9 mg दिया तो पहले ये नहीं देखने का, ये देखने का. This is 9 mg, therefore this is 3 mg because the difference should be 6. Because this is 9 and because this is 3, therefore this should be 6. कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी उन्होंने दिया ही नहीं है. That means you have to take the standard value कि minimum 6 mg होना चाहिए था. Yes or no? समझा अच्छे से? कोई प्रॉब्लम में वो लोग यहाँ का वेलोसिटी अलग देते हैं. Let me give you fantastic example. Are you on page number
एक काम करो, आर यू ऑन असाइनमेंट नंबर 6 हॉर्स, उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, असाइनमेंट 6 क्वेश्चन 17 देखो, पढ़ो ध्यान से। A stone is rotated in vertical circle and the speed at the bottommost point is root 8 rg. बोलो अलाउड है कि नहीं? रूट 5 rg से कम अलाउड नहीं है, लेकिन रूट 5 rg से ज़्यादा तो अलाउड है ना? Is that very clear? Then what is the tension at the bottom? अभी सोचो बॉटम पे वेलोसिटी रूट 5 rg नहीं है, मतलब बॉटम पे टेंशन 6 mg भी नहीं होगा। Is that clear? आंसर विल बी 9 mg। वो हम लोग देखेंगे कैसे आएगा। ओके, यहाँ तक समझा? तो क्वेश्चन नंबर 7 आया सबको। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आया? 3 mg। ऑप्शन कौन सा है? सी। टेंशन इज 3 mg एट द हॉरिजॉन्टल पॉइंट एंड योर आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ना बोला था, बराबर? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ना बोला था। 8 और 9 दोनों मैंने ना बोला था। 8 को पेंसिल से सर्कल करो प्लीज। 8 को पेंसिल से सर्कल करो प्लीज। नाइन्थ को पेंसिल से सर्कल करो, लेकिन ये मैं आज करवा दूंगा, है ना? एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल गेट टाइम टू फिनिश 9th। आई विल डू दिस। 10th मैंने बोला है, यस 10th इज इजी, वी हैव डन, हियर यू आर। 10th इज डन। 11th आया बेटा, मैक्सिमम टेंशन पूछा है। वेयर इज द टेंशन मैक्सिमम एंड व्हाट इज द फार्मूला? m v square upon r plus, बराबर? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11th। मैक्सिमम टेंशन इज एट द लोएस्ट पॉइंट एंड इज इक्वल टू m कॉमन v square upon r plus g। आगे आंसर सबको, डू आई नीड टू सॉल्व दिस? योर आंसर इज कमिंग एज बॉम्बे। Your answer is coming as Bombay. Question number 12. अभी यही बोला, total energy is conserved everywhere. Can I say total energy is 5/2 mRg everywhere? Yes or no? So your answer for question number 12 is C. Your answer for question number 12 is C. Question number 13. A body of mass 2 kg is attached in moving in vertical circle, underline vertical circle. The minimum speed at the lowest point. Common sense, root of 5 r. तो आपका आंसर आ रहा है 15.65. I think your answer is coming as root of 250 या तो root of 245, ऐसा कुछ तो आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था वो? 13. फॉर्मूला शुड बी रूट ऑफ 5 rg और आपका आंसर आ रहा है दिल्ली, है ना? 15.65 कौन सा ऑप्शन है? बॉम्बे या बॉम्बे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को बेटा पेंसिल से सर्कल करो। ये भी मैं आज ही करवाऊंगा, बट फिलहाल पेंसिल से सर्कल करो। बाइक वाला क्वेश्चन, बकेट वाला क्वेश्चन, पायलट लुकिंग द लुक वाला क्वेश्चन। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड पूछा है, पपलू है, सॉरी पपलू। रूट आरजी, बराबर? रूट आरजी एंड योर आंसर इज कमिंग एज रूट ऑफ 9.8 into 9.8. 9.8 is the answer. Easy. Sorry. Question number 15 is Paplu. Question number 14 answer was B. Question number 15 also I think is easy. You have to use v square equal to rg tan theta. You have to use r is equal to v square upon g tan theta, बराबर? Tan theta anyways is what? It is tan of 45 degree. Your answer is coming as 10. Your answer is coming as 10. मतलब बॉम्बे, बराबर? 16 मैंने ना बोला है। 16th और 19th मैंने ना बोला है। 16th और 19th को पेंसिल से सर्कल करो, दोनों को 5 स्टार बोलो, दोनों को खोपड़ी बोलो। 16th 19th दोनों को 5 स्टार बोलो, दोनों को खोपड़ी बोलो। 16th के बाजू में लिखो, 16th के बाजू में लिखो also solve assignment 6 questions 11 and 16.
मतलब बेटा जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, ये मेरे लिए छोड़ देना, आप लोग मत करना। जब मैं ये सॉल्व करूंगा ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। वी विल बी एबल टू डू दिस ओरली। बट एक में 4 क्वेश्चंस है, 4, ये दोनों को सर्कल किया तो 16 एंड 19 आर ऑन होल्ड। वो तो चेक करो, मैंने वैसे भी नहीं दिया था, इधर 16 नहीं दिया था, इधर 19 नहीं दिया था, बराबर। आर वी ऑन 17? अब बेटा एकदम ध्यान से सुनो, इधर मैं 2 प्रॉब्लम साथ में कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट सेम है, ध्यान से सुनो। अ बकेट फिल्ड विथ वाटर, अ बकेट फिल्ड विथ वाटर, a bucket filled with water moves in vertical circle, moves in vertical circle, vertical circle. How fast should it move? How fast should it move? So that water does not spill out of the bucket, water does not spill out of the bucket. बोलो मेरा, वाटर का बाहर आने का चांस किधर है? टॉप मोस्ट पोजीशन की लोअर मोस्ट पोजीशन? ऑब्वियसली एट द टॉप, एट द टॉप। एक बार बेटा ये कॉन्सेप्ट समझा ना, पायलट का कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आता है। ध्यान से सुनो, ये वर्टिकल सर्कल है, this is vertical circle, this is vertical circle, this was the bucket filled with water, of course tied with the help of a string, and that string is made to go in vertical circle very fast. मतलब बेटा यहाँ तक पानी, right? When it goes to the top, ये bucket मुझे ऐसा दिखेगा, राइट? अभी टॉप पे कौन से फोर्सेस अवेलेबल है वो देखो। 1 इज mg, 2 नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन नहीं आएगा बेटा इधर, बिकॉज फोर्स हम लोग वाटर पे स्टडी कर रहे हैं, बकेट पे नहीं। बकेट को हमने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि वाटर शुड नॉट कम आउट ऑफ द बकेट। तो बेटा वाटर के ऊपर किसका फोर्स एक्ट कर रहा है? दिस इज द बेस ऑफ द बॉटल, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ। अच्छा, ये दोनों मिलके मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने चाहिए, राइट? अभी ये जो सेंटेंस है ना कि वाटर शुड नॉट स्पिल आउट ऑफ द बकेट, इसका मतलब होता है कि नॉर्मल रिएक्शन विल जस्ट बिकम 0। एक प्रॉब्लम याद करवाता हूं, हाउ फास्ट अर्थ बॉल शुड रोटेट सो दैट एवरीबॉडी ऑन द इक्वेटर फील्स वेटलेस। तो बेटा वेटलेसनेस आपको कौन फील करवाता है? वेटलेसनेस कौन फील करवाता है? नॉर्मल रिएक्शन। आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आई एम एक्सर्टिंग माई फोर्स ऑन द ग्राउंड। What if the ground does not react on me? Means just imagine, I'm just taking a little jump in air. So for that fraction of a second, I'm not touching the ground. So the ground also is not reacting back on me. So it is the normal reaction which makes me feel weak. अब ये 2 बंदे में से नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं यार मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो ये सेंटेंस के 2 मतलब होते हैं। 1 वेट provides necessary centripetal force, एक मीनिंग ये हो सकता है, या तो फिर weight is balanced by, या तो weight is balancing centrifugal force। कॉमन सेंस अप्लाई करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला वाइज सेम, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको ऊपर की तरफ पुश करके रखता है so that water does not come out। या तो N और mg दोनों मिलकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करने वाले थे, अब N बोलता है मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, दैट मींस mg प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एडवांटेज, वेट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इज इट mv स्क्वायर अपॉन r, गया है। तो बेटा v का फॉर्मूला घूम फिर के आया रूट ऑफ r, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए था। वो बाइक राइडर का क्वेश्चन किया ना हमने, लेकिन बाइक राइडर में और ये प्रॉब्लम में फर्क क्या है मालूम है? बाइक राइडर ब्रिज के ऊपर है और ये पायलट लूप के नीचे के साइड पे है।
हैव यू हर्ड अबाउट डेथ वेल इन सर्कस बाय एनी चांस? एक बड़ा सा स्फीयर होता है, एकदम बड़ा सा ह्यूज स्फीयर होता है, 2-3 फ्लोर्स हाई, स्फेरिकल डोम, उसमें बाइक राइडर एंट्री मारता है पहले, राइट? ये स्फीयर है, इधर से बाइक राइडर ने एंट्री मारा, इधर से, इधर एक गेट होता है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, मतलब यहाँ पे ऑडियंस खड़ा है। अभी बाइक राइडर पहले ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा और स्पीड में जाएगा, फिर ये ऐसे जाना शुरू करेगा, फिर ये ऐसे जाना शुरू करेगा, और फिर ये ऐसे जाएगा। तो सोचो, जब ये ऐसे जाएगा, मतलब बाइक ऊपर है, राइडर नीचे, फिर भी वो नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? सेम आर्ग्यूमेंट, वेट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा एग्जांपल, फाइटर प्लेन is completing the vertical circle like this. In the language of physics, this is called looping the loop. पूरा लैंग्वेज एकदम सेम रहता है। ये जो बकेट फिल्ड विद वाटर है ना, उसके बदले पायलट इन द फाइटर प्लेन, उतना ही है बस। Why the pilot does not fall down? Weight of the pilot plays the role of centripetal force, or else weight is balanced by centrifugal force. तो बेटा इसमें 4 अलग अलग फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। उन्होंने क्या पूछा उसके ऊपर से फॉर्मूला यूज करने का। V पूछा तो ये अप्लाई कॉमन सेंस, ओमेगा पूछा तो बेटा ये हो जाएगा V is R ओमेगा, दिस इज अंडर रूट RG, तो दिस बिकम्स R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक R कट हुआ तो ओमेगा स्क्वायर इज G बाय R, तो ये हो जाएगा G बाय R। अगर ओमेगा पूछा तो, अगर टाइम पूछा हाउ फास्ट इट शुड मूव, देन इट इज 2 पाई रूट ऑफ R बाय G, और अगर फ्रीक्वेंसी पूछा देन इट इज 1/2 पाई रूट ऑफ G बाय R। वैसे भी बेटा टाइम का फॉर्मूला देखोगा ना ध्यान से, तो ये स्टाइल है टाइम का फॉर्मूला का। टाइम का फॉर्मूला का स्टाइल क्या होता है? सोचो, टाइम के फॉर्मूला का स्टाइल हमेशा होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। अब मैं आपको लाइन से 2 कॉन्सेप्ट दिखाता हूं और 4 प्रॉब्लम्स दिखाता हूं। 2 कॉन्सेप्ट्स, 4 प्रॉब्लम्स। आर यू ऑन हैंड रिटन नोट्स? हैंड रिटन नोट्स पेज 10। नो, पेज 12। यस, पेज 12 का बेटा राइट बॉटम देखो। कॉन्वेक्स रोड का कॉन्सेप्ट, पायलट लूपिंग द लूप का कॉन्सेप्ट, वाटर नॉट स्पिलिंग आउट ऑफ द बकेट का कॉन्सेप्ट। पेज नंबर 12 में जो 2 टाइटल्स लिखे हैं ना, एक तो कॉन्वेक्स रोड का कॉन्सेप्ट, पायलट लूपिंग द लूप, उसके बाजू में एक और लिखो, वाटर नॉट स्पिलिंग आउट ऑफ द बकेट। वो कॉन्सेप्ट भी यूज होता है इसमें, वाटर नॉट स्पिलिंग आउट ऑफ द बकेट, वाटर नॉट स्पिलिंग आउट ऑफ द बकेट लिखा हुआ है। वेरी गुड। अभी आप ये सिर्फ ध्यान से पढ़ो, फिर इसके ऊपर कौन से प्रॉब्लम्स मैं वो ढूंढ के लिखता हूँ, और बाद में वो चारों प्रॉब्लम देखो आपका आंसर आ रहा है कि मैं ये चारों प्रॉब्लम्स लिखता हूं। हो गया बेटा, पढ़ के हो गया। अब वो बिल्कुल वो आर्टिकल के नीचे लिखो, रिफर MCQs 9, 17 and 25। रिफर MCQs 9, 17 and 25। एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम हॉरिजॉन्टल। 9, 17 and 25 सॉल्व करो, देखो आ रहा है कि 9 मैंने नहीं दिया था तो सॉल्व करना है। असाइनमेंट 4 का 9, 17 और 25 सॉल्व करो। 2 minutes फॉर यू, कम ऑन। वर्किंग प्रिंसिपल सेम,
नाइन्थ में लिख के रखने का कि फॉर द कॉन्सेप्ट रिफर हैंड रिटन पेज 12. फॉर द कॉन्सेप्ट रिफर हैंड रिटन पेज 12. अभी पेज 12 पे हो आप लोग. पहले पेज 12 पे देखो, ऐसा कुछ तो दिया होगा, v is root of rg. चेक करो बराबर. ये भी लिखो उधर, ये भी लिखो. ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ. Pilot looping the loop, bucket filled with water, motorcycle is going in a death well. सब में सेम कॉन्सेप्ट, सेम. या तो वो लोग v पूछते हैं, या तो वो लोग ओमेगा पूछते हैं, या तो वो लोग हाउ फास्ट दैट पर्सन इज मूविंग वो पूछते हैं, मतलब टाइम पूछते हैं, और या तो पूछते हैं हाउ मेनी सर्कल्स आर कंप्लीटेड पर सेकंड. ये चार में से एक पूछते हो. ये चारों फॉर्मूला उधर जो है वो कॉपी मत करो, जो नहीं है वो कॉपी करो. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व असाइनमेंट फॉर 9th, 17th एंड 25. 25 तो सीधा सीधा बेटा ये फॉर्मूला है, और ये 9, 17, 25 तीनों के बाजू में लिखो. फॉर द कॉन्सेप्ट रिफर हैंड रिटन पेज नंबर 12, राइट बॉटम. फॉर द कॉन्सेप्ट refer hand written page number 12. For the concept refer hand written page number 12, right bottom. इसमें दो सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 1, weight is providing centripetal force, या तो weight is balanced by centrifugal force. I repeat, either you will say weight is providing the necessary centripetal force, or you will say weight is balanced by centrifugal force. ये सेंटेंस वहाँ पे लिखा है क्या पेज 12 पे? अगर नहीं लिखा है, then I want you to copy this. लिखा है तो अच्छी बात, नहीं लिखा है तो कॉपी करो. लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कॉपी करो. ये weight provides necessary centripetal force, या तो weight is balanced by centrifugal force. Weight provides necessary centripetal force, या तो weight is balanced by centrifugal force. अभी बेटा 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. 9, 17, 25. I am sure 2 minutes are enough. 2 minutes. 9th का आंसर बोलो. 12.56. आपका आंसर आ रहा है 4 पाई. आपका आंसर आ रहा है 4 पाई. बाद में 17th का आपका आंसर आ रहा है 200. v इक्वल टू रूट ऑफ rg. और 25th का आपका आंसर आ रहा है c. 25th का आपका आंसर आ रहा है c. अभी मैं वापस लाइन से जाता हूँ. लास्ट कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? 16 होल्ड पे रखा, राइट. 17 हो गया, 18th हो गया, 19th होल्ड पे रखा है. 20 कॉमन सेंस. आंसर बोलो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कैन वी से सेंट्रीपिटल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r, because mg does not contribute. Why mg does not contribute? It becomes mg cos 90. Cos 90 is 0. क्वेश्चन नंबर 21, कॉइन वाला क्वेश्चन. सिंपल बेटा, आगे भी किया हुआ है. ओमेगा 1 स्क्वायर r1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर r2. एक कॉमन सेंस की बात है. अभी अपने क्लास में सीलिंग फैन नहीं है, लेकिन घर में आपने देखा है, मैं एक ब्लेड पे एक कॉइन एकदम एंड पॉइंट पे रखता हूँ, ब्लेड के एंड में, और दूसरे ब्लेड पे बीच में रखता हूँ, और तीसरे पे सेंटर के नजदीक रखता हूँ. कौन सा कॉइन पहले उड़ेगा? एकदम एंड वाला ना. इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा ओमेगा कम, डिस्टेंस कम ओमेगा ज्यादा. यस और नो? सो द फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज ओमेगा 1 स्क्वायर r1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर r2. दैट मींस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशंस आर सेम. या तो फिर m ओमेगा 1 स्क्वायर r1 इज m ओमेगा 2 स्क्वायर r2, बिकॉज m एनीवेज इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड पे सॉल्व करने की जरूरत है. आपका आंसर सी आया. सी आया. क्वेश्चन नंबर 21, अंडरलाइन द वर्ड हेमीस्फीयर. आज मैंने बोला ना, वी आर गोइंग टू डू सम मोर कॉन्सेप्ट्स.
चार कॉन्सेप्ट्स है. एक है सिलिंड्रिकल वेलोड्रॉम. अच्छा 21 हो गया. 22 को पेंसिल से सर्कल करो. 22 आज हम लोग नहीं कर पाएंगे. 22 नहीं कर पाएंगे, है ना. ये 9th हो गया ना अपना 9th. ओके. 22 is not going to be done today because I have to teach you the concept of hemisphere. See, there are 4 concepts. One is cylindrical velodrome. I am doing it today. Next is conical funnel. I am doing it today. Next is convex rod, concave rod. Next lecture, Friday. And then the next article is hemispherical dome. Right? So let's suppose you have got an ice cream bowl, which is hemisphere. At the top of it, you are putting a 10 rupee coin. How fast you will flicker so that it will not slide down, but it will fly off. So that concept also we are going to do. Okay. Are we on question 23? On hold. On hold. Are you on question 24? Easy है बेटा, करो खुद से करो. चलो easy है. A motorcyclist is riding in vertical circle in a hollow sphere. यही हो गया ना pilot looping the loop वाला. Then the minimum speed required so that he does not lose contact with the highest point. Obviously अगर motorcyclist contact lose करेगा तो किधर करेगा? Highest point पे. Lowest point पे तो उसको support मिलता है ना floor का. लेकिन वो नहीं कर रहे contact lose. तो what is the argument? There are 2 arguments possible. One, weight of the motorcyclist is playing the role of CPF. या तो weight is balanced by CFF. I repeat, weight is providing the necessary centripetal force. या तो weight is balanced by centrifugal force. बराबर. क्या आंसर आया? 16. बराबर. 16 meters per second. एक मिनट. रूट ऑफ 26 into 10. रूट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट है ना. रूट ऑफ 260 which is closer to root of 256. So answer is 16 point something, but because 16 point something is not given, because the exact answer is not given, we have to select the nearest answer. अभी बेटा पहले प्रैक्टिस पेपर 3 पे आ जाओ. उधर भी 3 क्वेश्चंस दिए थे मैं. प्रैक्टिस पेपर 3 का 4th क्वेश्चन देखो. 4th, and please let me know, do I need to solve it? Common sense. What is the minimum velocity with which the body of mass m must enter the vertical loop so that it can complete the loop? Root 5 rg. क्योंकि बॉटम पे अगर उसका स्पीड root 5 rg है तो ही वो लूप कंप्लीट कर पाएगा. आंसर इज 3rd ऑप्शन. 4th क्वेश्चन टिक कर लो. हो गया. आर वी ऑन 9th? कॉमन सेंस की बात है बेटा. अगर नहीं आया तो हिंट देता हूँ और 1 मिनट का टाइम देता हूँ. What is the tension at the lowest point? M square upon R plus M. What is the tension at the highest point? M square upon R minus M. दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2mg. Exactly, 2mg. Very good. और वो डिफरेंस दिया है, मास पूछा है. Tension at the highest point is M square upon R minus mg. Step 1. Tension at the lowest point is M square upon R plus mg. Therefore, delta tension, difference in tension, is 2 mg. Delta T is given. कितना है? 20. 2g will be 20. तो m will be 1. Mass is 1 kilogram. आया आंसर? 9th का आंसर. Do I need to solve it? 9th टिक करो बेटा. 10th क्वेश्चन पकलू. उन्होंने आपको टेंशन एट द लोअर पॉइंट पूछा है. व्हाट इज द फॉर्मूला? हियर यू आर. m स्क्वायर अपॉन r प्लस mc. लेकिन उनको ओमेगा चाहिए. सो व्हाट इज द वे आउट? इट इज m ओमेगा स्क्वायर r प्लस mg. तो मैं m कॉमन ले रहा हूँ. m ओमेगा स्क्वायर r प्लस mg. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ प्रैक्टिस पेपर 3. आपका आंसर क्या आ रहा है? 13 न्यूटन दिल्ली. 13 न्यूटन दिल्ली. तो बेटा अभी भी है ना, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा. ये सब सम्स, ये 5 क्वेश्चंस बाकी है.
ये 5 क्वेश्चंस बाकी है. आप लोग असाइनमेंट 4 के एकदम टॉप पे लिख लो पेंसिल से. पेंडिंग एमसीक्यूज 8, 16, 19, 22, 23. 8, 16, 19, 22, 23. 8, 16, 19, 22, 23. बराबर? Okay. Are we now on the new concepts? Books band. Okay. Books band. Now generally there are 4 concepts. One is conical funnel, other is cylindrical velodrome. This 2 I am doing today. Hemisphere in the next class, and convex and concave road also in the next class. Concentrate. The first article is cylindrical velodrome. After every article I will give you enough time. You will also have to think. Where else have you heard about something like this? If suppose this is a cylindrical drum, if this is a cylindrical drum, and if there is a sphere or a block over here, and you are putting it on the wall like this, what do you expect? What will happen? It will fall down. It will fall down. The thing says it should not fall down. What will you do? Now, if this is the line passing through the center of mass of the cylinder, then you rotate the cylinder very fast. Advantage, when the cylinder rotates, can I say this block या तो sphere will by default perform circle, बराबर, and because the omega part is sufficient enough, that means centripetal force part is sufficient enough, right? That means you can argue 2 things. Centripetal force will be provided by someone, या तो centrifugal force will balance someone. Now one by one, tell me what do you understand from this diagram? Tell me one by one, who is this? Very good, proud of you. Who is this? सोच के बोलो. Friction. Perfect. Very good. Because there is a contact force between the cylinder and the block. सोच के बोलना बेटा. सोच के बोलना. Who is this? Centripetal force बराबर. लेकिन centripetal force बाहर से कहीं से नहीं आता है. कोई तो प्रोवाइड करता है. कौन है वो? Normal reaction. Very good. Normal reaction is the force exerted by the wall on the body. अगर आप ये सरफेस पे खड़े हो तो नॉर्मल रिएक्शन आप पे ऐसे एक्ट करता है. अगर आप ये सरफेस पे खड़े हो तो नॉर्मल रिएक्शन आप पे ऐसे एक्ट करता है. अगर आप ये सरफेस पे खड़े हो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करता है. So if you think about, this part will not come in the video, but if you can think about the weight of this bottle, can I say it is acting downwards? But normal reaction is not upwards. Normal reaction is this way. Yes or no? Because it is suspended with the help of a clamp. अगर बेटा ये फायर एक्सटिंग्विशर इधर रखा हुआ है, right? तो weight is acting downwards. Normal reaction is not acting upwards because I am not talking about my palm. I am talking about the board. That means the normal reaction is towards you. अब यहाँ पे clamp है, तो ये clamp की help से इसको लटकाते हैं. Yes or no? So over here, the normal reaction is not upwards. No, the normal reaction is perpendicular to the wall. So now check who is doing what. We have always said 2 things must happen.
somebody must balance the weight and somebody must play the role of centripetal force. So who balances weight? Can I say weight is balanced by friction? Perfect. तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, F is equal to W is equal to mg. Yes or no? Next, who provides the necessary centripetal force? Normal reaction provides the necessary centripetal force. Normal reaction provides the necessary centripetal force. So can I say N is equal to FCP is equal to mv square upon r? अभी बेटा पास में हम लोगों ने इक्वेशन किया था, याद करो. F is mu n, याद आया? Frictional force is mu times normal reaction. What is F? mg. Mu as it is. What is n? mv square upon r. This is mv square upon r. So can I say m is gone? Anyways, you know that speed is always independent of mass. V का फॉर्मूला क्या है देखो? Is it root of rg upon mu? कुछ याद आ रहा है? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? अनबैंक रोड में ये रोल उल्टा था. कैन वी से नोट, ध्यान से सुनो, दिस इज रिवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैंक रोड. रिवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैंक रोड. अनबैंक रोड में कौन क्या करता था याद करो. अनबैंक रोड में फ्रिक्शन वाज प्लेइंग द रोल ऑफ, यहाँ पे फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग द वेट, वेयर इट वाज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड नॉर्मल रिएक्शन वाज बैलेंसिंग द वेट. मतलब बेटा ये काम करता था और ये काम करता था. अनबैंक रोड पे जाके देखो, समझा कि वापस बोल, मतलब एक ही जगह पे फर्क आया. प्रीवियसली इट वाज रूट ऑफ म्यू टाइम्स आरजी, दिस टाइम इट इज रूट ऑफ 1 बाय म्यू टाइम्स आरजी. यस और रूट ऑफ आरजी तो रहना ही चाहिए ना. एक मिनट, वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? शुड इट नॉट बी रूट ऑफ आरजी इनटू समथिंग डायमेंशनलेस? अभी कंपैरिजन बोलता हूं, कंपैरिजन. अगर ये अनबैंक्ड रोड था और अगर ये सिलिंड्रिकल वेलोड्रॉम है, तो बेटा दोनों के फॉर्मूला में क्या फर्क है? यहाँ पे इट वाज अंडर रूट म्यू टाइम्स आरजी एंड यहाँ पे इट इज अंडर रूट 1 अपॉन म्यू टाइम्स आरजी. मतलब एग्जाम के टाइम पे बेटा ये कनेक्ट करने में आना चाहिए. तो आपको 2 आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आर्टिकल पढ़ा बाकी का हो गया. अभी जैसे मैंने बकेट फिल्ड विद वाटर वाला आर्टिकल किया, पायलट लूप इन द लूप बोला ही नहीं मैंने, मोटरसाइकिलिस्ट गोइंग इन अ डेथ वेल बोला ही नहीं. सेम लॉजिक समझा. सुपर श्योर, रिपीटेशन रिक्वायर्ड. आप लोग जब तक पढ़ोगे तब तक मैं ढूंढ के रखता हूँ कि ये एमसीक्यूज कहाँ पे है. असाइनमेंट 5-6 में होंगे मोस्टली. यस और नो? हैंड रिटन पेजेस, पेज 9 तक अपना सब हो गया था. पेज 9 तक. अब आप पेज 10 पे हो. पेज 10 मैं सिखाने वाला हूँ, रुक जाओ. अभी आप पेज 11 पे हो. पेज 11 का लेफ्ट टॉप देखो, आराम से पढ़ो एकदम. पेज 11 का लेफ्ट टॉप देखो, आराम से पढ़ो. हो गया पेज 11. चलो बुक्स पर. न्यू कॉन्सेप्ट, conical funnel. Now suppose I am giving you a funnel, means it's a hollow cone like this. The radius of this cone is capital R at the base, and the height of this cone is capital H. बराबर?
This angle is called vertex angle. As PCM students, you know this. What I am doing is, I am giving you a marble. I am giving you a marble, and you are putting this on the wall. What will you expect? What will happen? It will slide down and it will come here. But they say, do something where this remains there only. It does not come down also, it does not go up. इसका मतलब आप ये कोनिकल फनेल को रोटेट करोगे, कॉन्सेप्ट एकदम सेम बराबर. इसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर r. बराबर. Now the conical funnel will rotate, right? Conical funnel rotates. What happens to this sphere? It performs circular motion और ये घूम के इधर आया. अभी ध्यान से मैं जो पूछता हूँ उसका आंसर दो. Tell me who is this? Proud of you. Very good. Tell me who is this? Excellent. Very good. बराबर. You know that somebody must balance the weight. तो अगर weight ऐसा है तो ये साइड पे कोई तो होना चाहिए जो उसको बैलेंस करे. And somebody must play the role of centripetal force. तो वो ये लाइन पे होना चाहिए. Right? Now most important is theta. अगर बेटा ये थीटा है, do you agree with me? ये थीटा है. तो ये बाजू वाला कौन हुआ? 90. Perfect. Very good. तो फिर ये कौन हुआ? थीटा हुआ. थीटा सबसे मेन. अब अगर ये थीटा हुआ और अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है. तो ये कौन हुआ? ये सॉरी tan sin थीटा. प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड. वेरी नाइस. वेरी नाइस. इसको ध्यान से देखो. ये बैंक रोड का बिल्कुल उल्टा है. बैंक रोड में ये एन कॉस थीटा होता है और ये एन साइन थीटा होता है. इसमें ये एन साइन थीटा, ये एन कॉस थीटा. यू नो व्हाट डज दिस मीन? सिलेंडर इज ऑपोजिट ऑफ वन बैंक रोड. कोनिकल फनेल इज ऑपोजिट ऑफ बैंक रोड. समझा बेटा? एंड नाउ द आर्टिकल इज वेरी वेरी सिंपल. बिकॉज अभी आपको ये ढूंढना है कि हाउ फास्ट दिस कोनिकल फनेल शुड रोटेट. मतलब या तो आप v ढूंढो या तो आप ओमेगा ढूंढो. सोच के बताओ कौन क्या कर रहा है. What is n sin theta doing? Is it balancing the weight? mg. What is n cos theta doing? Playing the role of centripetal force. Is it mv square upon r? तो can I say tan theta जो बैंक रोड में v square upon rg आया था वो अभी rg upon v square आएगा. करके देखो. इसका मतलब v square is rg cot theta है ना. rg अपॉन tan थीटा. तो बेटा v का आंसर क्या आया? रूट ऑफ rg cot थीटा. बराबर. नाउ v is equal to r ओमेगा as you know. This is rg cot थीटा. तो इसको मैं स्क्वायर ले लेता हूं. करेक्ट. तो एक r कट हुआ. Therefore ओमेगा should be under root g by r cot थीटा. अगर उन्होंने ओमेगा पूछा तो the safest is v ढूंढ लेने का और बाद में एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने का. ओमेगा इज v by r. और एक चीज ध्यान से देखो. ये डायग्राम में थोड़ा साइड में अलग से बनाता हूँ. थोड़ा साइड में अलग से बनाता हूँ. ये वाला डायग्राम. आपको बेटा ये ट्राइंगल दिख रहा है अभी? ये ट्राइंगल ये राइट. अगर ये फुल आर था और ये फुल एच था तो ये स्मॉल एच है और ये स्मॉल आर है और ये थीटा और ये 90 है. सोचो. समझ में आ रहा है मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? अगर ये मैं कोनिकल फनेल को काटते जाऊं विल आई गेट स्मॉल 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 कोन्स. मान लो आप आइसक्रीम खा रहे हो और आप एग्जैक्ट वे में इसके स्लाइसेस बना के खा रहे हो. तो ये छोटा 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 कोन बन रहा है ना. तो मैं ये कोन की बात कर रहा हूं. ये तो अगर फुल कोन का रेडियस बिग आर था और हाइट बिग एच था तो दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल एच. कैन आई से फ्रॉम हियर कॉट ऑफ थीटा इज बाजू वाला अपॉन सामने वाला. tan ऑफ थीटा इज सामने वाला अपॉन बाजू वाला. सो कॉट ऑफ थीटा इज बाजू वाला अपॉन सामने वाला.
Can I rewrite this formula as V equal to under root RG cot theta is H by R. R cut हुआ, that means V is under root GH. अगर उन्होंने R दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर दो, एंड इफ यू आर वेरी लकी उन्होंने H दिया तो बेटा ये तीन में से आपको एक ही मालूम है, दूसरा तो बाय डिफॉल्ट मालूम है, G तो मालूम ही है, तो V देंगे तो H पूछेंगे, H देंगे तो V। समझा? वो कॉन्सेप्ट किसका उल्टा था? ये कॉन्सेप्ट किसका? एग्जाम में स्मार्ट वर्क करते बैठे, अनबैंक रोड पड़ा ना सीधा कोनिकल सिलेंडर पे जाने का, और बैंक रोड पड़ा सीधा इधर जाने का। द रोल्स आर स्वाइप्ड, दैट्स इट, राइट? यू आर बैक टू पेज नंबर 12. You are back to page number 12. I'm so sorry, 11. Left bottom. शायद ये कमेंट लिखा होगा मैंने कि it is opposite of unbanked road. शायद चेक करो। पेज नंबर 11 पे चार कॉन्सेप्ट्स हैं। सिलेंडर हो गया, कोनिकल फनेल हो गया, कॉन्वेक्स रोड, कॉन्केव रोड इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, हेमिस्फीयर इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आप पेज 10 पे आ गए, सिंपल, ध्यान से देखो। अगेन वन एक्सपेरिमेंट विच यू कैन इजीली विजुअलाइज। सीलिंग फैन के बारे में सोचो, और उसका जो सेंट्रल पोर्शन है विच इज अ डिस्क, उसके ऊपर एक 5 रुपए का कॉइन रखो, जस्ट स्विच ऑन द फैन, डू यू थिंक द कॉइन विल फ्लाई ऑफ? इट विल नॉट फ्लाई ऑफ, बिकॉज द वेट ऑफ द कॉइन विल बी बैलेंस बाय नॉर्मल एक्शन। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे वो कॉइन की डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, एंड देयरफॉर आफ्टर सम स्पीड द कॉइन विल फ्लाई ऑफ। व्हाट इज दैट स्पीड? अंडर रूट म्यू आर जी। कॉमन सेंस अप्लाई करो। When a vehicle is going on unbanked road, friction provides centripetal force. So when the coin is kept on the disc and when the coin does not fly off, who provides the necessary centripetal force? Friction again. बराबर। हम लोगों ने जो अनबैंक्ड रोड के ऊपर वेहिकल का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम अभी डिस्क के ऊपर कॉइन है, तो when the disc rotates, अभी बेटा डायग्राम देखते जाओ साथ साथ में, पेज नंबर 10 लेफ्ट टॉप, सिर्फ डायग्राम पे फोकस करो। व्हाट इज द डिस्क डूइंग? परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। उसके ऊपर अपने कॉइन रखा हुआ है, इज इट परफॉर्मिंग सर्कल? अब वो कॉइन के ऊपर कौन से फोर्सेस है वो देखो, mg डाउन, नॉर्मल रिएक्शन अप, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स शुड एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। मेरा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू एन, बराबर। तो F की जगह पे कौन आएगा? ध्यान से सुनो, F की जगह पे कौन आएगा? एम वी स्क्वायर, और N की जगह पे कौन आएगा? एम जी। आपका आंसर होगा V इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर। इज इट एग्जैक्टली सिमिलर टू अनबैंक्ड रोड? कमेंट लिख के रखो, बाजू में कमेंट लिख के रखो, एग्जैक्टली सिमिलर टू अनबैंक्ड रोड। कौन सा क्वेश्चन बेटा? डिस्क कॉइन वाला क्वेश्चन। Disc coin वाला question is exactly similar to unbanked road. Page number 10, left top, similar to unbanked road, समझा बेटा? ये तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ,
फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट. ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, लेकिन जब ये आईआईटी में आया था, till those years vertical circle was not there in the syllabus of normal students. That means those who want to appear for IIT, apart from horizontal circle, they will have to search for extra books in the library, and they had to study vertical circle also. It was not in the syllabus of board exam, it was there in the syllabus of only IIT. तो वो टाइम पे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता था. नाउ वर्टिकल सर्कल इज ऑफिशियली पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो नाउ इट इज वेरी इजी. बुक बंद करो. ये मैंने आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया और आगे एक सर्कुलर लूप दिया. द इंक्लाइन प्लेन इज कंटिन्यूड बाय सर्कुलर लूप. अभी कॉमन सेंस अप्लाई करो. मैंने आपको एक स्फीयर दिया, स्फीयर, और वो स्फीयर मैंने इधर रखा, इधर, और छोड़ दिया. Do you think it will be able to loop the loop? Do you think it will be able to complete circle? No. क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी इनफ नहीं है. मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके गया. Do you think? थोड़ा और ऊपर लेके गया. Do you think? पता नहीं. थोड़ा और ऊपर लेके गया. Do you think? शायद. देखते हैं, शायद. अब इसके लिए कंडीशन क्या है? Over here, if this position is suppose A and this position is suppose B, ये स्फीयर के पास मिनिमम इतना पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद एटलीस्ट 5/2 mrg हो जाए. कॉमन सेंस अप्लाई करो. व्हाट इज द कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप? कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप इज व्हाट? लूपिंग द लूप इज वेलोसिटी एट द बॉटम should be minimum root of 5 rg. ज्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए. बराबर. अच्छा, suppose this position is A and this position is B. What is kinetic energy at A? 0, because you are holding it. What is potential energy at A? Is it mgh, where h is this height? Question is from what height will you release it so that it completes the loop? अच्छा, what is kinetic energy at B? Is it 5/2 mrg? Why? Minimum velocity should be root of 5 rg. And what is potential energy at B? Very good. So can I say, according to law of conservation of mechanical energy, this energy should match with this energy. Am I right? mgh should match with 5/2 mrg. That means kinetic energy at B should be because of potential energy at A. That means 5/2 mrg should be mgh. mg गया. That means the minimum height should be 5/2 of radius. मतलब अगर रेडियस ऑफ द सर्कल 10 मीटर है तो मुझे मिनिमम 25 मीटर से छोड़ना चाहिए इसको. अगर रेडियस ऑफ द सर्कल 2 मीटर है तो मुझे मिनिमम 5 मीटर से छोड़ना चाहिए इसको. कैन आई ऑल्सो से, और एज इट इज 5/4 टाइम्स डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये बेटा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन. ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन. ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन. यू नो व्हाई? व्हेन इट वाज ओल्ड सिलेबस, व्हेन सीईटी वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, और व्हेन इट वाज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2004 फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तब तक ये चैप्टर सिर्फ बैंक रोड तक था. बैंक रोड में ये चैप्टर खत्म, राइट? लेकिन जब इन्होंने जेडब्ल्यू मेंस डाला 2008-9 में, गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी जेडब्ल्यू मेंस कंपलसरी करते हैं. दैट टाइम दे इंट्रोड्यूस वर्टिकल सर्कल आल्सो इन द सिलेबस. तो उसके बाद में आईआईटी के बाद क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट सिलेबस में आ गए. तो नाउ दे आर नॉट टफ फॉर यू. अभी सोचो मैंने आपको वर्टिकल सर्कल सिखाया ही नहीं, मतलब आपको पता ही नहीं कि बॉटम पे वेलोसिटी रूट 5 आरजी होता है. How will you crack this question? But now you know this. Yes or no? Page number, I think 11. 11. 10. Left bottom. Done. Check. Left bottom. लेफ्ट बॉटम हो गया बेटा.
अभी राइट टॉप देखो, राइट टॉप ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। हाफ सर्कल वाले कितने सारे क्वेश्चंस किए हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एवरेज? इज इट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा वी? 2v sin थीटा बाय 2। तो हाफ सर्कल में इट शुड बी 2v sin 180 by 2, राइट? तो आपका न्यूमरेटर हो गया 2v स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो गया पाई आर अपॉन v। इज योर फाइनल आंसर 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर? आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन के बारे में बोला था कि 5 अलग अलग चैप्टर्स में आएगा। 2 upon pi is very important number in physics। 2 upon pi का मतलब होता है 2 upon 3.14। If it was 2 upon 3, your answer was 0.666666। But because it is little less than more than 3, your answer is little less than that। Check please, 2 upon pi is 0.636, which is 63.6%। अब ये 5 अलग अलग चैप्टर्स में आएगा। पहला चैप्टर जो चल रहा है, नेक्स्ट ये ऑसिलेशन चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट ये मैग्नेटिज्म में आएगा, वेयर दे विल गिव यू अ बार मैग्नेट स्ट्रेट। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज n। अब इसको आप बैंड करो, एग्जैक्ट सेमी सर्कल में कन्वर्ट करो, जिसको हम लोग हॉर्सशू शेप मैग्नेट बोलते हैं। तो उसका डाइपोल मोमेंट विल बी 2 upon pi टाइम्स। इसका डाइपोल मोमेंट सपोज n था, सेमी सर्कल में कन्वर्ट करने के बाद उसका डाइपोल मोमेंट है 2 upon pi टाइम्स n। फिर ये हाउस होल्ड अप्लायंसेस में यूज होता है। अपने घर में एसी यूज होता है, एसी ऑल्टरनेटिंग साइकिल। एसी का फुल फॉर्म एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग साइकिल है, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं। उसको बोलते हैं एसीसी, एसीई, एसीवी। एसीसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग साइकिल ऑफ करंट, एसीवी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग साइकिल ऑफ वोल्टेज, एसीई का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग साइकिल ऑफ ईएमएफ। तो व्हेन यू गो फॉर हाफ साइकिल, power consumed is 2 upon pi times original। when you go for half cycle, check उधर लिखा होगा power average is 2 upon pi times power instantaneous। ये चैप्टर का नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने 4 चैप्टर बोले अभी तक, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन, मैग्नेटिज्म, EMI। 5वां चैप्टर इज न्यूक्लियर फिजिक्स, कि जिसमें एक आर्टिकल है मीन लाइफ और एक आर्टिकल है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है द टाइम इन विच द रेडियोएक्टिव मटेरियल रिड्यूसेस टू हाफ, whereas मीन लाइफ का मतलब होता है द एवरेज ऑफ ऑल हाफ लाइफ, जिसमें द सब्सटेंस रिड्यूसेस टू 37%, मतलब 37% बचा, दैट मीन्स 63% गया। तो 63% इज 63.6। तो ये 5 अलग अलग चैप्टर्स में आने वाला है। इज दैट क्लियर? 2 upon pi का फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। प्लीज कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड। उधर लिखा होगा ऑलरेडी, दिस विल कम इन 5 डिफरेंट चैप्टर्स। पेज नंबर 10 का जो राइट बॉटम है, उसमें मैंने ये लिखा है कि कौन से आर्टिकल में क्या रिजॉल्व करने का। याद करो, बैंड रोड में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करते थे, कोनिकल पेंडुलम में हम लोग टेंशन को रिजॉल्व करते थे, वर्टिकल सर्कल में हम लोग mg को रिजॉल्व करते थे, राइट? कोनिकल फनल में हमने वापस n को रिजॉल्व किया। बैंड रोड विद फ्रिक्शन में हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन को भी रिजॉल्व किया था, mg को भी रिजॉल्व किया था। सो यू मस्ट नो दिस, कौन से आर्टिकल में किसको रिजॉल्व करके वेक्टर डायग्राम बनाया जाता है। सो विथ दिस ऑल द आर्टिकल्स ऑन पेज नंबर 10 ओवर। पढ़ो ध्यान से। सिनॉप्सिस वाइज स्टूडेंट्स, सिनॉप्सिस वाइज अपना पेज नंबर 1 to 10 ऑल डन, 11th लेफ्ट हाफ डन, यू कैन चेक। 11th राइट हाफ ऑन होल्ड, पेंसिल से एकदम ऊपर लिख के रखो, पेंसिल से लिखना प्लीज, ऑन होल्ड। अभी पेज नंबर 12 चेक प्लीज, लेफ्ट हाफ डन। मैंने एक अर्थ वाला क्वेश्चन सिखाया था और मैंने बोला था कि ये 4 अलग अलग चैप्टर में आता है, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन। हाउ फास्ट अर्थ बॉल शुड रोटेट। इनफैक्ट मैंने बहुत सारा स्टोरी सुनाया था उसके पीछे। एवरी अफ्रीकन विदाउट एनी डाइट प्रोग्राम एंड एक्सरसाइज विल बिकम वेटलेस। अर्थ बॉल इज ऑलरेडी स्फेरॉइड, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, it will become all the more spheroid. The equatorial part will become very outbulging and the north pole south pole will come close to each other. All the icebergs will melt.
The polar ice will be converted into water, and that water cannot escape because of gravity. The tidal waves will be raised approximately by 50 meters, and the earth will be drowned. Earth will be drowned. All the coastal area will go first. After that, tsunami will become very, very powerful, and the earth ball is gone. Are you getting this? That's the reason the scientists keep warning us about controlling global warming. Right? ये जो ग्रीनलैंड का इश्यू चल रहा है ना, ट्रस्ट मी, ग्रीनलैंड में पॉपुलेशन बहुत कम है. इट्स अबाउट 60,000 पीपल, लेस देन दैट. इट्स अ वेरी वेरी बिग country, very big country. Right? Now if Greenland is taken over by suppose US, this is US, नीचे मैक्सिको है और उसके बिल्कुल ऊपर कनाडा है. ग्रीनलैंड, कनाडा को तो वैसे भी ट्रम्प गिनता नहीं है, बोलते यू आर 51st सिटी ऑफ आवर कंट्री. मतलब उसने जस्टिन ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाया था, उसने बोला था यू आर द गवर्नर ऑफ कनाडा. मीन्स इसने का चीफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री, नॉट प्राइम मिनिस्टर. मतलब वो इंसल्ट ही हुआ. ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, वेनेजुएला ले लिया, ग्रीनलैंड ले लिया. दैट मीन्स दैट एंटायर पार्ट इज यूएस का कंट्रोल. राइट? नाउ इफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स गो ऑन ओवर देयर, ऑलरेडी द आइस इज मेल्टिंग, ऑलरेडी द अर्थ का बैलेंस बिगड़ा हुआ ही है. अगर और ज्यादा आइसबर्ग्स मेल्ट हुए, technology wise it will be very beautiful country. Wow, nice high story buildings, all the best of the cars available, this that etc. You google the name of the country, Monaco, one of the richest countries, cool most countries, almost everybody is having Ferrari over there, almost everyone. उससे भी expensive cars है वहाँ. Yes or no? तो अगर ग्रीनलैंड ऐसा कुछ बन गया, इसका मतलब technological growth is there, but the ecological balance of the earth is very, very badly affected. Very badly. There are some science fiction movies like 2012, The Day After Tomorrow, Journey to the Center of the Earth, Gravity, where with the help of these fiction movies, the scientists have tried to show कि please don't do this to the earth, otherwise you will not have the planet to stay on. To hell with your technological developments. Is that clear? That's the reason green energy. That's the reason solar energy. That's the reason no petrol, no diesel, no benzene. Right? Little off the page is stop. When Mr. Trump came, right? He promised Elon Musk, I will support your cars, electrical vehicles. That means I will not support petrol, diesel. He won the election. Now he had also promised petrol, diesel companies that I will support your companies. Right? That means indirectly you are not supporting Elon Musk. So Elon Musk has started his own party now. Right? In the next elections, if Elon Musk is the candidate of president of US, don't be surprised. Yes or no? What was the next step? Petrol, diesel, I will support. So I will lutofy Venezuela. ब्लेम क्या डाला? वेनेजुएला का बंदा ड्रग एडिक्शन करता है, ये करता है, वो करता है. तुम्हारा यूएस में भर भर के ड्रग एडिक्शन, तो पता नहीं वो वेनेजुएला वाला भेजता है, इसलिए हमारे यहाँ पे ड्रग एडिक्शन. राइट? अगर वो लोग नहीं भेजते तो इसलिए मैं इसको किडनैप कर रहा हूँ. नाउ दिस इज स्ट्रेट अवे अटैक टू द सॉवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री. अगर वो कोई एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या तो प्रेसिडेंट को किडनैप करके लेके जाता है लिटरली, तो वो फिर नेक्स्ट तो फिर वो जो मैक्रॉन भी हो सकता है, मोदी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. यस और सो द वर्स्ट वॉर इज ट्रेड वॉर. उसके बाद का गंदा वॉर इज केमिकल वॉर. उसके बाद का गंदा वॉर इज न्यूक्लियर वॉर. एंड द वर्स्ट वॉर इज सैटेलाइट वॉर. सैटेलाइट मीन्स ब्लडी आई एम ब्लास्टिंग ऑफ योर सैटेलाइट्स ओनली. चाइना ने 5 साल पहले अपना खुद का सैटेलाइट उड़ा दिया. सोचो, यू आर बाइंग अ ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार, you are sprinkling petrol on that and you are just doing this. Why did you do this? It was basically a threat to US कि बॉस अगर हम लोग अपना 1000 करोड़ का सैटेलाइट उड़ा सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, तो सोच रहे तेरे तो कितने सैटेलाइट्स हैं. एंड इफ यू अटैक द सैटेलाइट्स, दैट मीन्स द कंट्री हु ओन्स दोज सैटेलाइट्स इज टेक्निकली ब्लाइंड. आपका सबमरीन नहीं चल सकता, आपके फाइटर प्लेन्स नहीं चल सकते, आपके मिसाइल्स नहीं चल सकते, आपके पायलट्स को कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल सकते. आपके पास पूरा फाइटर प्लेन्स का पूरा सब कुछ है, सबमरीन्स है,
but you don't know where to attack, whom to attack, why to attack. So all this is useless. ईरान अभी क्या कर रहा है? 100-150 छोटे छोटे बोट्स रखे उसने अब्राहम लिंकन के पास. सबसे पहले जो अब्राहम लिंकन के ऊपर का एयर बेस है ना, वो उड़ाएंगे वो लोग. अगर वो उड़ाए तो तुम्हारे पास 45 F-15 जेट्स है, उड़ेंगे कहाँ से? रनवे तो चाहिए ना. तो सबसे पहले रनवे पे अटैक करते हो. रनवे का मतलब योर प्लेन्स आर यूजलेस, दे आर जस्ट लाइक मॉडल्स, शो पीस. रखो अपने पास. गॉट इट? सॉरी मैं थोड़ा सेंटी हो गया, फिजिक्स था ना इसमें. यू शुड नो कि हाउ द कंट्रीज अटैक एंड डोमिनेट अदर कंट्रीज. ओके, आर यू ऑन पेज नंबर 12? लेफ्ट पार्ट डन, राइट टॉप पेंडिंग, राइट बॉटम डन. इसका मतलब इफ यू सी द सिनॉप्सिस वेरी केयरफुली, ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन. अभी बेटा मैं 2 प्रॉब्लम्स देता हूँ, ये आप लोग अब भी करो. एक कोनिकल फनेल का है, एक सिलेंडर का है. आर यू ऑन कोनिकल फनेल? वेट, आई विल टेल यू द प्रॉब्लम नंबर. Are you on assignment 6? Are you on assignment 6? Sorry, 5. Assignment 5, question 22. पढ़ो. Assignment 5, question 22. पढ़ो और सॉल्व करो. पहले तो मुझे ये बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, रूट ऑफ आर जी कॉट थीटा कि रूट ऑफ एच जी? एच जी हाइट ऑफ द कोन पूछा है, स्पीड ऑफ द कोन दी है, v इज रूट ऑफ जी एच. v मालूम है तो h पूछेंगे, h मालूम है तो v पूछेंगे. सॉल्व करो, आई एम वेटिंग फॉर यू. और पहले तो उधर हिंट लिख के रखो. रिफर हैंड रिटन पेज, कौन सा था? 10, 11, हाँ लिखो. रिफर हैंड रिटन पेज 11. रिफर हैंड रिटन पेज 11. क्या आंसर आया बेटा? 2.5 सेंटीमीटर. वेरी गुड. सेम असाइनमेंट 31 पे जाओ. सेम असाइनमेंट 31. सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला जज करना है. दिस इज सिलिंड्रिकल वेलोड्रोम. दिस इज दिस आर्टिकल. वी का फॉर्मूला पूछा है कि ओमेगा का. वी का फॉर्मूला पूछा है कि ओमेगा का. वी का फॉर्मूला हमेशा क्या स्टाइल में रहता है? अंडर रूट आर जी इंटू समथिंग विच इज डायमेंशनल. सो दैट समथिंग इज 1/μ दिस टाइम. योर आंसर इज ऑप्शन ए. योर आंसर इज ऑप्शन ए. बाजू में हिंट लिख के रखो. रिफर हैंड रिटन पेजेस. रिफर हैंड रिटन पेजेस पेज 11 ना? 11 ना? चेक करो एक बार. 11 ठीक है. अभी बेटा नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क लिखो आप. नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क. होमवर्क फॉर नेक्स्ट लेक्चर प्लीज राइट. होमवर्क फॉर नेक्स्ट लेक्चर असाइनमेंट 5. अभी देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको 10-15 एमसीक्यूज होमवर्क दिए. वो 15 में से 10 भी आ गए तो 10 में अपना टाइम बचता है कि नहीं? अच्छा, कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं? यस आई न्यू दिस फॉर्मूला सो आई कुड ट्राई दिस. जितना बेटा खुद से सॉल्व करोगे ना, उतना मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा ऑन वेरी टफ क्वेश्चंस. वेरी वेरी टफ क्वेश्चन आई विल सॉल्व ऑल ऑफ देम ऑन द बोर्ड. डोंट वरी. प्लीज मेक अ नोट ऑफ द होमवर्क. किसने अलार्म रखा है भाई? आज है. You can read or I'll speak it out for you. You can read. Assignment 5, questions 2, 3, 6 to 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23,
25, 26, 29, 31. Assignment 6. 3, 5, 7, 8, 10. Only 23 MCQs homework. Trust me, maximum 45 minutes. Even if you are very slow, finish it today only. I'll tell you why. This weekend is a non-physics weekend. Right? So Friday I am not planning to give you any homework. Finish this. Friday we'll be concentrating on solving tough questions. And those 2-3 concepts which are left. Right? So I think lecture number 12 पे ये topic खत्म होना चाहिए. Understood the lecture of the day? Bye bye. See you. तूने इसका फोटो लिया इसका सेकंड बोर्ड